सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਚੈप्टर ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਆਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਨਵਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ O ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਉਹ ਜੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨਣੇ। ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਰ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਨॉन 0 ਆ ਗਿਆ। ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨॉन 0 ਆਵੇ, ਆਰ 0 ਆਵੇ, ਜੀ ਨॉन 0 ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਅ ਕਪਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਿਡਿਊਸ ਜਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਗ ਜਾਊ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਨॉन 0 ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀ 0 ਆ ਜਾਏ, ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨॉन 0, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ 'ਚ ਕਪਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਪਲ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨॉन 0 ਹੋਵੇ, ਜੀ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਨॉन 0 ਹੋਣ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨॉन 0 ਆ, ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨॉन 0 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਪਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ x into y। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ X ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ Y ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ x ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਆਫ r ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ, y ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਆਫ r ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ। ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ। ਚਲੋ x y ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ x ਲਿਆ ਸੀਗਾ r cos ਥੀਟਾ, y ਲਿਆ ਸੀ r sin ਥੀਟਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ r ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੀਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ g ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੱਢਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ y ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਜਨ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। A
ABCD is a rectangle with AB equal to 4 meter, BC equal to 3 meter. Along AB, BC, CD, DA and AC act forces 2, 7, 6, 10, 5 kg. Show that system reduces to a couple and find its moment. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਾ ਤੇ ਔਖਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਊਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਮੀਟਰ, BC ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ 2 ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਅਲੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਫੋਰਸ, kg ਪਾ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ 2 ਪਾ ਲਓ। CD ਅਲੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਫੋਰਸ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ DA ਅਲੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਫੋਰਸ। ਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੋਰਸ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ AC ਅਲੋਂਗ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 5, ਇਹ 5 ਫੋਰਸ AC ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਥਡ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਪਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਜੋ ਹੈ, R ਇਹ 0 ਆਵੇ ਅਤੇ G ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨॉन 0 ਆਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ। R ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, R ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, G ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ। R ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, XY ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। G ਕੀ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ R ਤੇ G ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇ R 0 ਆ ਗਿਆ, G ਨॉन 0 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਪਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ R ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ X ਐਕਸਿਸ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਇੱਕ X ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ, ਇੱਕ Y ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ XY ਕਰਦੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ 5 cos ਥੀਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚ cos ਥੀਟਾ sin ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ AC ਸਕੁਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਲਵ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਔਖਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ XY ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆ।
नैक्सट 2 चैप्टर 3 चैप्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ एक्स वाई ਅਤੇ मूवमेंट उपर बेस्ड ने। चलो ये ए सी स्केयर आ गया, ए सी स्केयर होगा ए बी स्केयर बी सी स्केयर, ये आ गया 4 16 प्लस 9 तो ए सी आ गया 5, तो कॉस थीटा आ गया अपने कोल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 4 आ सॉरी, अते साइन थीटा आ गया अपने को परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ये आ गया अपने को। हुण आप एक्स करते हैं, एक्स की आऊगा 2 cos 0, हुण ये ध्यान च होवे एंगल 0 बना रहा, 7 cos 90 एंगल बनता, ये बनेगा 6 cos 0, एंगल तो 0 बनता है पर डायरेक्शन ऑपोजिट आ तो नैगेटिव आ जाएगा। ये सारा पिछला काम है जी। ये बना रहा एंगल एक्स एक्स 90, ये बनेगा 10 cos 90, cos 0 1 हो गया, 2 माइनस 6 आ जाएगा, भी 0 ये भी 0 माइनस, ये पुराना काम है तो मैं सीधा कर रहा तो वाई कढ़िया अपने, ਇਹਦਾ कितना एंगल बनता वाई एक्स नाल 90, तो ये cos वाला पार्ट आ जाएगा 2 cos 90। ये पहला कर चुके जो नहीं पता है जी तो पिछले लेक्चर ध्यान ना सुन लियो। ये आ गया 7, ये सिंपल जी गल लगता कि जिन्होंने ये चीज़ हजे पता नहीं लगी कि किवें कढ़ने है ने, इदा कह लो कि उन्होंने कुछ समझ नहीं आया पिछला, इस करके ਇਹਦਾ ਤਾਂ बहुत लिंक है एक्स वाई वाला, ਇਹਦਾ यूज होणगे। ਇਹਦਾ आ गया अपने कोल 90 एंगल बनता है 6 cos 90, ਇਹਦਾ 0 एंगल बनता वाई एक्स नाल, डायरेक्शन ऑपोजिट आ माइनस 10 cos 0, ये आ गया 90 0 90 0 7 माइनस 10 माइनस 3। हुण जेड़े पढ़ रहे हैगे ने उन्होंने पता लग जाऊगा कि इत्थे गलती है, कई सीधा उतार रहे होंगे, इदा नहीं है कि जो सीधा लिखा बोर्ड से वो सही है जी। जेड़े जिन्होंने पता होगा पता लगे गलती की है, गलती ये है इदा नहीं कि देख देख के तारी जाना, इतों ये लगता पता कि थोड़ा कुछ कंसैप्ट नहीं क्लीयर, बस आप देख देख के काम करी जाने। की रह गया जी आ फोर्स ला ली, आ फोर्स आ फोर्स आ फोर्स तो रहेगी 5, ये 5 का नहीं आना सी 5 cos थीटा एक्स एक्सिस लॉन्ग 5 cos थीटा आएगा जी, cos थीटा कितना 4/5, ये 5 इंटू 4/5, ये आ गया 0। ये ध्यान रखना जी, ये 5 का रह गया अपने इधरले पासे पार्ट, ये एंगल थीटा बनता, ये वाला पार्ट की होगा साइन वाला 5 साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया 3/5, ये कट गया, ये कितना आ गया 0। Therefore x की हुंदा r cos थीटा, ये भी 0 आ गया, y कितना हुंदा r sin थीटा, ये भी 0 आ गया। Therefore x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर बनेगा, ये कितना आ जाएगा 0, तो r कितना आ गया अपने को 0। r हम g कटांगे आप, g हमेशा ओरिजिन के अबाउट, जिन्होंने आप ओरिजिन मन्निया उहदे अबाउट कढ़ना, ये गल ध्यान रखनी है। जी हैगा अपने कोल अलजैबराइक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए, सारिया फोर्स का मूवमेंट कढ़ांगे अबाउट ए, उहदा अलजैबराइक सम करांगे, वो जी होगा। तो देखो वो कितना है जिहदे अबाउट कट रहे हैं, फोर्स उहदे विचों पास कर रहे, डिस्टेंस 0 होगा, मूवमेंट 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 डिस्टेंस 0, आ भी कर लो 5 इंटू 0 तो 10 इंटू 0, जो पहला पा लो बाकी बाद चो पा लो, थोड़ी मर्जी है। आ 7 लई 7 इंटू परपेंडिकुलर मारना जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डिस्टेंस कितना आ गया 4,
7 into 4 डायरेक्शन की होगी यदि एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव हो आ लिया अपने +6 आ फोर्स इतों परपेंडिकुलर आ कितना परपेंडिकुलर आ डिस्टेंस हो गया ये डिस्टेंस कितना अपने को 3 तो 6 into 3 ये आ गया 28 + 18 46 आ गया तो की मतलब बन गया इत्थे ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ तो देखते हैं ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ R0 ਨਹੀਂ ਆ R0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ G ਆਪਣਾ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ therefore forces is equivalent to a couple ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰੋਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਜੇ ਆਰ 0 ਹੋਵੇ ਜੀ ਨॉन 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੋਰਸਿਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਪਲ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ देयरफॉर ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਇਹ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਪਲ ਕਹਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी कुछ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਇਹ क्वेश्चन कर रहे हैं आप फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 kg Q kg R kg act alongside AB BC DC DA of sphere ABCD forces each of magnitude 5√2 kg act along BD CA. If these forces are equivalent to a couple, find Q and R. Also find the moment of couple given each side of sphere is 4 meters in length. देखो की है पूरा डायग्राम बनाने आप जेड़े बच्चे पढ़ रहे होंगे पता होगा कि स्टार्टिंग तो मैं यही गल करता आ रहा कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आ डायग्राम अपन आती होवे प्लस फॉर्मूले अपन पता हो अपना अद्धा काम हो जाएगा सॉल्व अद्धा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बाकी अद्धा काम है कि फॉर्मूले डायग्राम दे विच किवें यूज करने हरेक क्वेश्चन डायग्राम आ रही है तां करके गल कही सी डायग्राम के उपर ज़्यादा ध्यान देना आपां ਤੇ डायग्राम बिना प्रैक्टिस तो नहीं आनी हैगी इदा नहीं है कि जो क्लास च क्वेश्चन करवा रहे हैं बस वही क्वेश्चन घरों कर रहे हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी इदा प्रैक्टिस नहीं होगी जो काम मिलता है वो काम सारा ना ट्राई करना है तो डाउट अपने क्लीयर करने ने तो प्रॉपर समझ आऊगा जी चलो ए हो गया अपने को स्केयर ये ABCD ले लिया एक्स एक्सी वाई एक्सी मान लिया दिता की होया उन्होंने AB उपर फोर्स लग रही हैगी 5 डायरेक्शन ध्यान रखनी है BC उपर लग रही है 10 DC D तो C जा रही है इत्थे Q लग रही है फोर्स अते DA D तो A जा रहे हैं आप इत्थे R फोर्स लग रही है दिता है जी अपन और कीता है अपन कि BD B तो D जाना अपन इधर फोर्स लग रही हैगी 5√2 दी फिर जाना हैगा अपने जी C तो A जाना हैगा इधर फोर्स लग रही है 5√2 दी आप शो कर दिता है अपन कि ये कपल का इक्विवेलेंट आ कपल का इक्विवेलेंट कदों होंदा हैगा
जो R 0 हो G नॉन 0 हो, मतलब R 0 दिता है अपन R 0 ये पहला किता है। R इक्वल टू 0 का मीनिंग की है कि X भी 0 है Y भी 0, ये पहला आप पढ़िया है। R 0 मतलब X Y दोने 0 ने। इस तो बाद क्यू ते R फाइंड करने वास्ते कहा अपना, क्यू ते R दो ने। मैथ के इदा होंगे है जिन्हें आप वेरीएबल फाइंड करने हूँ घट्टो घट्ट उन्नी इक्वेशन बनानी है। हूँ क्यू ते R च दो इक्वेशन बनानी है, इन्हें एक इक्वेशन इतों बन जाएगी कि इतों बन जाएगी जी, वो क्यू ते R निकल जाएगा। हुण एक्स वाई किवें कढने ने पुराना काम, मतलब क्वेश्चन कोई नवा नहीं है, सारा पुराना क्वेश्चन है जो करते हैं आप। स्केयर दे विच एंगल कितना होंदा है 45 का होंदा, स्केयर दे विच डायगनल अते साइड विच एंगल 45 होंदा जी। जो पहला आप एक्स कट रहे हैं, एक्स कितना होगा जी, ए फोर्स लई 5 एंगल कितना बना रहे हैं 0, फिर आ 10 फोर्स ले रहे पहला आप नाल 10 एंगल कितना बनता 90, क्यू फोर्स लई एंगल कितना बनता जी 0, प्लस तो आप डायरेक्शन अगे जाएगी। ये एंगल 90 बना रहा आर एक्स एक्सिस नाल, ये एंगल 90 है, ये बनेगा आर कॉस 90 ना। दो फोर्स रहेगी, आ फोर्स लेने पहला, ये फोर्स पिछे प्रोड्यूस कर लो 5√2, ये कितना हो गया जी 45। ये कॉम्पोनेंट क्यों कॉस वाला, ये आऊगा 5√2 cos 45, साइन नेगेटिव बिकॉज डायरेक्शन इधरले पासे हो। ਇਹਦਾ 45 ਇਹ पार्ट कितना आऊगा जी cos वाला आ जाएगा 5√2 cos 45, ये भी नेगेटिव होगा बिकॉज डायरेक्शन इधर। ये x किहदे बराबर 0 बराबर, इन्हू सॉल्व कर लेने पहला आप। 5 cos 90 0, cos 0 1, cos 90 0, cos 45 कितना हो गया अपने को जी 1/√2, तो ये भी cos 45, ये जस्ट वैल्यूज भरिया ने, सारा काम पिछला है तो मैं तेज कर रहा। ये 5 कट गया तो क्यू इतों अपना 5 आ गया, एक क्यू कटा एक आप फिर बाद चो आर कटा। हुण आप वाई कटते हैं, वाई ये कितना बनता है जी 90, 5 cos 90, ਇਹਦਾ एंगल 0 बनता वाई एक्सिस नाल, ते एंगल की है डायरेक्शन की है सेम तो पॉजिटिव आएगा। ਇਹਦਾ एंगल 90 बनता है, आर का 0 बनता जी 0, डायरेक्शन ऑपोजिट नीचे जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। ਇਹਦਾ एंगल आ ले रहे कटना आ वाला पार्ट है जी, ये साइन वाला पार्ट आ जाएगा 5√2 साइन 45, डायरेक्शन की है नीचे नू तो नेगेटिव आ जाएगी। ਇਹਦਾ एंगल आ कटना पा वाला पार्ट आ, ये बनेगा 5√2, तो ये आ जाऊगा अपने को साइन 45 पॉजिटिव आएगा, क्यों क्योंकि ऊपर जा रहा है सेम डायरेक्शन च। ये भी 0 है जी, इन्हू कर लो cos 90 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, 0 माइनस आर, ये बनेगा -5√2/√2 कट गया, ये बनेगा 5√2/√2, ये भी कट गया इक्वल टू 0, ये कट जाएगा आपस तो आर कितना आ जाएगा इस केस 10। ये सारा पुराना काम है, नवा काम नहीं है कोई, ये आर 10 आ गया। हुण इस तो बाद पी क्यू ते आर निकल गए, मूवमेंट ऑफ कपल कढ़ना। मूवमेंट ऑफ कपल की होगा ए दे अबाउट जो अलजैब्रिक सम कढ़ांगे सारे मूवमेंट का, उन्होंने मूवमेंट ऑफ कपल कहांगे जी, जो जी कहा आप जी मूवमेंट ऑफ कपल होगा, तो देयरफॉर जी इज इक्वल टू, सीधा लिख रहा है मैं शॉर्टकट मार रहा,
ये 0 हो गया 5 इंटू 0, आ फोर्स विचों निकल रही है 5 √2 इंटू 0 आ गया जी, आ विचों निकल रही है R इंटू 0, 3 हो गई। हुण आ लै लो पहला 10, डिस्टेंस दिता है अपन स्केयर की साइड सारियां 4 ने दिता है जी अपन, फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस तो आप है बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज आ, अगे Q इंटू 4, डिस्टेंस 4 आ जी, Q क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नैगेटिव साइन पाया, ये भी हो गया। आह आ रहेगा मतलब ਜਿਹੜੇ डायगोनल होंदे हैगे ने स्केयर दे, ये परपेंडिकुलर भी होंदे ने, स्केयर दे डायगोनल जो होंदे हैगे ने ये आपस च परपेंडिकुलर होंदे ने। फिर की हैगा इहनूं आपां AE मान लाने डिस्टेंस, देखो ये आऊगा 5 √2 इंटू AE, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट आएगा, डायरेक्शन की है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। हुण AE किवें कढांगे, हुण ट्रायंगल दे विच एक एंगल पता होवे ते साइड पता होवे, बाकी साइडां कढ सकदे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी यूज करते आ रहे हैं आपां। ये एंगल पता, ये साइड पता हैगा, लभना की आपां परपेंडिकुलर, ये कढ लांगे आपां। चलो सॉल्व करते हैं। आ 0 हो गया, आ 0 हो गया, आ 0, ये 40 आ गया, Q कितना 5 सीगा, 5 इंटू 4 प्लस 5 √2 इंटू AE आऊगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, ये बन गया 4 sin 45। ये पहला गल्लां कीतियां हुई सारे, जिन्होंने प्रैक्टिस होगी, जिन्होंने पता होगा कि सीधा आंसर किवें आ रहा, सीधे आंसर कढ़वाए ने, जो पहला काम किया दसिया सी उत्थे कि सीधे कढ़न की आदत पाउणी है, जिन्होंने प्रैक्टिस होगी वो सीधा कढ़ लैणगे। ये आऊगा 40 - 20 प्लस 5 √2 इंटू 4 बाय √2, ये आ गया 20 प्लस 20, ये 40, ये मूवमेंट ऑफ कपल कहांगे कि 40 आ, ये अपना काम सीगा। तो ये सारा पुराना ही काम आ रहा, कोई नवीं गल नहीं आ रही, ये सारा कुछ पुराना आ रहा। तो जो नवा कंसैप्ट है सिर्फ वो आ कि इक्वेशन ऑफ लाइन कटनी हो क्वेश्चन करते हैं आप जी। वो क्वेश्चन हैगा जी, पहला रब कर लीए, वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप। द मूवमेंट्स ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस about 3 points 1 0 0 1 and 1 2 are 4 25 22 units respectively. Find the magnitude of the resultant force. Prove that it acts along the line 12x minus 9y equal to 16. यह चीज बस है लाइन, बाकी देखोगे जो पहला पार्ट आ की ये तीन फोर्सिस अबाउट मूवमेंट लग रहा है दिता है, दसो रिजल्टेंट किवें आऊगा, ये पुराना काम आ। बस ये की फोर्सिस नहीं पता है, जे फोर्सिस पता होंगे तो ही आप रिजल्टेंट कटांगे। फोर्सिस देने वास्ते कढ़ने वास्ते उन्हें दिता है कि मूवमेंट कंडीशंस गिवन ने, जो लभ लवांगे। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो कटांगे आप, सारा पुराना काम है, कोई नवा काम नहीं है। बस ये नवी गल ये कि लाइन की इक्वेशन किवें कढ़नी, लाइन की इक्वेशन कढ़नी किवें आप करांगे, एक स्टैप का आंसर है जी, एक स्टैप से कढ़ांगे आप आंसर, बाकी काम सारा पुराना है। जो क्वेश्चन करते हैं आप, जी डायग्राम बनाने प्रॉपर पहला, जी डायग्राम बनाई जी आपने, एक है पॉइंट 1 0, इत्थे लै लो, ये 1 0 पॉइंट, एक 0 1 पॉइंट है जी, एक हैगा 1 2 पॉइंट, 1 2 पॉइंट, कोई भी ला लो, ए मान लो, ए बी मान लो, ए सी मान लो, ये ओरिजिन ओ आ,
ओरिजिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने वास्ते क्योंकि ओरिजिन के उपर ही आप जी करना जी अलजैब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्सिस। चलो ये हो गया। इन्हां पर 3 फोर्स एक्ट कर रही हैं, मतलब एक तो इत्थे इहदे विच लग रही है फोर्स पता नहीं किहड़ी आ पी मान ली, एक इधर फोर्स लग रही है ये पता नहीं कितनी हैगी आ आर मान ली, एक आ फोर्स लग रही है ये नहीं पता हैगा इहनूं आपां एस मान लिया पी आर एस जो मर्जी मान लो। ये 3 फोर्सां आपां सपोज कर लियां, 3 फोर्सां पता नहीं हैगियां। हुण इन्हां रिजल्टेंट कढना आपां जां ऐ करो फोर्स आर आप रिजल्टेंट वास्ते सिंबल यूज करते हैं रिजल्टेंट वास्ते तो इन्हूं P1 P2 P3 मान लो फोर्स क्योंकि आर सिंबल आप रिजल्टेंट वास्ते रखा है। जो 3 फोर्सां जे पता होणगियां तां आपां इन्हां रिजल्टेंट कढ सकदे हां, एक्स कढ के वाई कढ के स्केयरिंग एडिंग करांगे रिजल्टेंट आ जाऊगा। हुण ये 3 फोर्स कढांगे पहलां 3 फाइंड करने आपां 3 वेरीएबल अपने आपां तां घट्टो घट्ट 3 इक्वेशन चाहिए आपां घट्टो घट्ट 3 इक्वेशन चाहिए ने। वो 3 इक्वेशन वास्ते दिता है उन्होंने कि जी कि मूवमेंट अबाउट ए किहड़ा पॉइंट 0 1 मूवमेंट अबाउट 0 1 देखो ध्यान 25 दिता है। अगे लाइन छड़ रहा मैं थोड़ी जी मूवमेंट अबाउट बी हैगा 1 0 के अबाउट दिता है मूवमेंट आपां 4 प्लस तां पाया उन्हें अगे की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ते मूवमेंट अबाउट सी दिता है जी आपां 22 ये आपां नूं गिवन है मूवमेंट। हुण 3 इक्वेशन बनावांगे इत्थों 3 इक्वेशन बन गई 3 वेरीएबल 3 वेरीएबल निकल जाएंगे फिर आप एक्स कढ़ांगे फाई कढ़ांगे फिर आर निकल जूगा। ये काम सारा पुराना कोई नवा काम नहीं है जी। सो देखो कर रहे हैं आप सॉल्व मूवमेंट अबाउट ए। हुण ए दे अबाउट मूवमेंट कढ़ांगे 2 फोर्स विचों निकल रही ने मतलब P1 इंटू 0 P3 इंटू 0 इहदे विचों निकल रही ने तो 0 हो जाएगा डिस्टेंस 0 इत्थों परपेंडिकुलर ड्रॉ करता। हुण ये थोड़ी कॉमन सेंस है कि डिस्टेंस कितना होगा इहदे बराबर होगा ए 1 का डिस्टेंस 1 होगा तो कितना होगा P2 इंटू 1 ये सीधा पा सकते हैं आप शो नहीं करना कि 1 किवें आ सीधा लिख सकते हैं आप 1। हुण डायरेक्शन की है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तां पाए जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इत्थों कितना आ गया 25 इत्थों काम सौखा हो गया जो P2 है वह 25 आ गया एक फोर्स तो निकल गई सीधी। हुण मूवमेंट अबाउट बी है हुण मूवमेंट अबाउट बी लिया अपने इत्थे प्रॉब्लम आऊगी जी जो बी ये 2 फोर्सां विचों निकल रही P1 ते P2 विचों निकल रही ने तो P1 इंटू 0 हो गया जी और P2 इंटू 0 हो गया दोनों 0 हो गए। जे तो आ हो गया इस पॉइंट तो ये उपर की ड्रॉ करांगे आप परपेंडिकुलर। हुण ये देखना कि परपेंडिकुलर किवें ड्रॉ होगा इदां होगा किवें होगा कुछ नहीं पता आपां तो होर देखो ध्यान नाल जे पता होवे आ डिस्टेंस कट सकते आप ए बी ये पहला करना आप इस तो पहला होगा जी जिहड़ा ए बी डिस्टेंस हैगा ये √2 आऊगा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर √2 आ गया। AC डिस्टेंस कितना आऊगा जी x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर ये भी √2 आएगा जी। BC डिस्टेंस कितना चेक कर सकते हो आ डिस्टेंस 2 आ सीधा ही आ भी 2 होगा सामने वाला तो BC भी कितना हो गया 2। ध्यान दो हेयर BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो जी BC स्क्वायर कितना बनेगा 4 इक्वल टू 2 + 2 ठीक है ये पाइथागोरस थ्योरम आ गई। ये कदों लगती होंगी हैगी जो ट्रायंगल की होगा राइट एंगल ट्रायंगल जिहड़ी आ होंदी है ये हाईपोटेन्यूज होंदी एक साइड सिंगल होंदे इहनूं हाईपोटेन्यूज कहने ते हाईपोटेन्यूज के सामने ही 90 एंगल होंदा हाईपोटेन्यूज के सामने 90 एंगल बनेगा ये 90 एंगल तो फिर लोड नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करदी परपेंडिकुलर तो हैगा ही है ते आ डिस्टेंस कढ़िया आपां हुणे कितना ए बी √2 तो ये आ जाऊगा P3 इंटू √2 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ कहाँ पॉजिटिव आया
ए भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, तो P3 जो है वो आ गया 4/√2, ये भी निकल गया। हम मोमेंट अबाउट C करते हैं, आप मोमेंट अबाउट C कढ़िया, P2 विचों निकल रही है 0 हो गया, P3 विचों निकल रही है 0 हो गया, P1 रह गया, P1 इंटू आ परपेंडिकुलर होगा, आ डिस्टेंस कट चुके हैं आप कितना √2, ये √2 आ गया जी, 22 आ गया। ये डायरेक्शन की हैगी है जी एंटी क्लॉकवाइज, आह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव है। इतों फिर अपने कोल P1 का असर कितना आ गया 22/√2, ये सारा पुराना काम है। P1 निकल गया, P2 निकल गया, P3 फोर्स निकल गई। हुण की करना, आप इस रिजल्टेंट कढ़ना है। चलो ये मैं रिजल्टेंट कढ़ रहा, इस तो बाद एक्स कढ़ांगे, वाई कढ़ांगे, बाकी सॉल्व करांगे। हुण रिजल्टेंट वास्ते एंगल चाहिए होगा ना जी, एंगल किवें कढ़ांगे, एंगल किवें कढ़ांगे आपां, ये एंगल किवें कढ़ांगे, आ P1 फोर्स सी, आ डिस्टेंस 1 आ डिस्टेंस 1, ये थीटा सपोज कर लिया। इस तो बाद अगे सॉल्व कर रहे हैं आप, क्योंकि जो आप एक्स वाई कढ़ने हैं तो एंगल चाहिए होंगे ने, तां ही आप रिजल्ट पार्ट कढ़ांगे cos थीटा sin थीटा। तो आ थीटा हो गया अपना एंगल मान लिया, तो tan थीटा कितना होगा, ये की ले रहे हैं आप इन ट्रायंगल OAB। tan थीटा होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OA अपॉन OB 1/1 थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। जे यह 45 है समझो ध्यान ना, तो ये कितना होगा टोटल 90 है, ये 45 हो गया जी, ये 90 है, ये 45 है, तो यह एंगल कितना होगा 45। एंगल पता होणगे तां ही आप रिजल्ट पार्ट कढ़ सकते हैं। वही डायग्राम खुली जी बनानी है। हुण एक्स कढ़ रहे हैं, एक्स की होंदा R cos थीटा, ये कढ़िया अपने, ये फोर्स अगे एक्सटेंड कर लो, इधर कितना 45 है, ये दोनों बराबर होंगे जी। इधर रिजल्ट पार्ट की होगा P1 cos 45, P2 एंगल 90 बना रहा, P2 cos 90, P3 इदा बना लो, चाहे ये थोड़ी मर्जी है, इदा बना लो। एंगल 45 यही है, देख आप कॉम्पोनेंट रहे हैं इधरला एक्स एक्सिस लॉन्ग है जी, तो साइन वाला होगा ये, एंगल तो दूजा पार्ट लवांगे साइन वाला होंदा जी, तो ये बनेगा P3 sin 45, डायरेक्शन नेगेटिव बिकॉज पीछे जा रहे हैं। ये हो गया, तिने फोर्सा हो गई, ठीक है जी। ये आ गया अपने को P1 पता अपन कितना 22/√2 cos 45 कितना 1/√2, P2 कढ़े आप होनी 25 cos 90 0 हो जाएगा, लोड नहीं पानी, cos 90 0 माइनस P3 4/√2 इंटू 1/√2, ये कितना आ गया अपने को, ये 11 आ जाएगा कट के, ये 2 आ जाएगा, ये आ गया अपना O वाला 9, ये 9 आ गया। नंबरिंग 1 पा लो, सारा पिछले काम चल रहा है। फिर वाई ले लिया अपने R sin थीटा, जो R sin थीटा लिया आप वाई वाला, दूजा पार्ट देखने आप साइन वाला पार्ट आऊगा जी, P1 sin 45 डायरेक्शन नेगेटिव, P2 cos 0 बना रहे हैं एंगल पॉजिटिव ही डायरेक्शन च, P3 जो एंगल देख रहे हैं वाला पार्ट कटना अपने, ये cos लाएगा, P3 cos 45 डायरेक्शन नेगेटिव बिकॉज नीचे आ रहे हैं। P1 आपको पता है जी 22 माइनस 22/√2 sin 45 1/√2, P2 25 कटे आप cos 0 1 हो जाएगा जी, P3 की वैल्यू भरी हुई है अपन 4/√2 cos 45√2, ये आ गया अपना 11 आ गया जी, ये 2 आ गया 13 12, ये 12 बन गया। फिर R किमें निकलेगा, देयरफॉर R इक्वल टू
ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 81 + 144 225 ਤਾਂ ਆਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ xy - yx = g। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ। g ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨਾਓ g ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ forces about O। ओरिजिन ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ, ओरिजिन ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤੇ हैं ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। P1 डायरेक्शन चेक करो, ਇਹਦੀ डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। पहली गल इस पॉइंट ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੁਮਾਵੇਂ क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आऊगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रायंगल जो कटांगे ये एंगल 45 और डिस्टेंस पता बनना। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज साइन हाइपोटेन्यूज चक के उधर ले गए तो ये बनेगा 1 sin 45। दूजी फोर्स लई अपने P2, डिस्टेंस आ कितना 1 P2 × 1 डिस्टेंस, डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज होएगी तो आंसर की हो गया अपना पॉजिटिव। आ देखो जी इन्हें पिछे लेके जाना पऊगा। ਹੁਣ ਇਹ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ਆਪਾਂ ਇਹ 45 ਆ ਤਾਂ ਇਹ 45 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ 45 ਆ ਜੀ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ 1 ਆ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज साइन बन गया, ये भी बन गया दिस डिस्टेंस = 1 sin 45। P3 × 1 sin 45। ये सारा पिछला काम। डायरेक्शन ਇਹਦੀ भी एंटी क्लॉकवाइज होएगी, ये पॉजिटिव। देख लो कितना आ जाऊगा। P1 पता सी आपां नूं -22/√2 × 1/√2। P2 पता आपां नूं 25 है जी, प्लस P3 पता आपां नूं 4/√2 × 1/√2। ये 2 आ गया, ये 11 27 16 आ जाएगा आंसर। ਹੁਣ x भी निकल गए, y भी ਤੇ g भी, देयरफॉर ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਉਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, x y - y कैपिटल X = c। x y ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 12, x ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ 9, g ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ 16। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 12x 9y = 16। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, 12x 9y 16। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।